हाँ मैम, हाँ मैम, विजिबल है, हाँ। विजिबल। वो मेरे को ना मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे सेलेक्ट करके फिर वो लेते हैं 2-3 मिनट कि वो सेट होके रिकॉर्ड शुरू करे। ठीक है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था कल, है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, देन वी विल गो फर्दर। और हमने क्या कहा था, दैट इफ वी वांट टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट of some body, then we have to define a set of coordinates. We must know what it is, length, breadth, height. Okay, so we have to define a set of coordinates and say these coordinates are x, y and z. Okay, they may be r or theta, or they may be r, theta or phi. It depends upon uh, type of motion the body possesses. ठीक है, so if frame of reference is what, why do we need? Actually we want to determine the position and location of the objects to find their velocities, and for that we want to find their location. Okay, and to find the location we need coordinates, and these coordinates will be given to us by the three axes. This combination of three axes is called frame of reference. We are taking the minimum of three axes because most of the bodies they are in three dimension. We are not going for four, fifth and sixth dimension here, though they exist now. So whatever bodies we are going to deal with, they have at the most three dimension, length, breadth or height. Okay, so we have taken the frame of three axes. इवन इफ द बॉडी पोजेस टू डायमेंशन, आपके पास कोई प्लेन शीट है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, इवन देन व्हाट विल हैपन, द थर्ड कोऑर्डिनेट विल बिकम zero. So at the most we have taken the set of three axes, and the set of these three axes is called our frame of reference. What is the special about this frame of reference? That it consists of three axes x, y and z, and these three are mutually perpendicular to each other. Okay, this one is our frame of reference. Now frame of reference will can be classified in further into two categories. Okay, depending upon whether the cause of force is visible or is it not visible. Let us go to the first type. New slide is there, it should be there on your screen also. Okay, somebody is waiting in the lobby, let me check. So the first, the inertial frame of reference. Most of the time we are dealing with this inertial frame, inertial frame of reference. And inertial frame of reference, we said that Newton's law of motion, they will be valid. What was the Newton's law of motion? क्या था Newton's law of motion? सोचो सोचो, थोड़ा तो पढ़ा है हमने. Newton's law of motion says that if there is no force on the body, then it will not change its state of rest, state of motion or the direction of motion or its shape. Okay, so this is our first law of motion, and we define that there must be some external force to change the state of motion or state to change the state of the body. Okay, it means there must be some force. So in this frame of reference where the laws of motion will be valid, you will be able to see the cause of force, who is applying force or from where the force is coming. That origin of force will be known to you. Okay, and next I'm skipping this example. In the non-inertial we will study, and then we will discuss both the examples. Now see that the term inertial frame is your relative. It depends with which we are comparing. You can make any inertial frame of reference on your own once you know the xyz axis. Okay, and for your convenience, according to what type of problem we are going to solve, we can take another frame of three axes. These three axes again mutually perpendicular, provided this frame is moving with constant velocity with respect to the first frame of reference. Its velocity should be constant. Velocity constant means it should not be accelerated or decelerated.
it should move with constant velocity. And when you are saying it is moving with constant velocity, means not only it is moving with uniform speed. If it is traveling with the speed of 40 kilometer per hour, it will remain same. And if it's traveling along x-axis, positive x-axis, it will continue to move along positive x-axis. It is not going to change its direction after some times to the negative axis or to the negative y-axis or the positive y-axis. Its direction of motion as well as speed of motion, that will remain fixed. This is the characteristic of our inertial frame of reference. And then we have, whatever we have said in the last point, we have shown it here. This is the first frame of reference, XYZ, this shown in the that pink color. And then we have taken another frame of reference parallel to y-axis. There is another y-axis, y dash. Parallel to x-axis, there is another axis, x dash, and similarly z dash. They are parallel to the first frame of reference, and this frame is moving with constant velocity along positive x-axis. Okay, it can move in either direction. It depends upon us how we want to represent it. Okay, or problem to problem it also vary. So in the inertial frame of reference, you say, ma'am, that any frame of reference which is moving with constant velocity as compared to the first, with respect to the first, that is our frame of reference, new inertial frame of reference. Laws of motion will be obeyed here, and the origin of force will be visible here. You can clearly define, yes, this is the force acting on the body, that's why they are causing this type of effects. Okay, now we are going to the second type of frame of reference, that is our non-inertial frame of reference. Non-inertial. मैम आप Hello. लास्ट स्लाइड वापस पढ़ाओ ना, पूरा आवाज चला गया था आपका. Oh, रुको. This one. No मैम, डायग्राम पार्ट. Okay, हाँ, in फ्रेम ऑफ रेफरेंस. frame of reference. Yes, this is how we generate another frame of reference. If one frame of reference is given, we can generate another frame of reference. और ये स्पेशली कब लगता है, जब हमें, जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन्स इंटरफेरो एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जिसमें ये कंक्लूजन निकाला था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये जो लाइट हमने उसमें पूरा अर्थ का रोटेशन कंसीडर किया गया था, तो हम अर्थ के ऊपर ही हैं, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना डिफिकल्ट था. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे एज्यूम करते हैं जैसे कि हमारी वो लेबोरेटरी में शिफ्ट हो गया. ठीक है, हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं. जैसे हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं, ओ से कहाँ पर आ गए, ओ डैश. ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सपोज तुम्हारा घर का जो डिस्टेंस था वो पहले मैं कॉलेज से डिफाइन कर रही थी, अभी मैंने उसे कॉलेज से डिफाइन नहीं करके कहाँ से करना शुरू कर दिया. सपोज जो रिवर है मेरे पास, रिवर इज दैट इंद्राणी. ठीक है, जो कॉलेज के पास फेमस वाला टेम्पल है, हमने तुम्हारे घर का डिस्टेंस है वहां से मेजर करना शुरू कर दिया. ठीक है, घर तो वहीं रहेगा, कॉलेज भी वहीं रहेगा, मंदिर भी वहीं रहेगा. ओनली थिंग इज वी आर नॉट चेंजिंग द प्लेस ऑफ रेफरेंस, वी आर चेंजिंग अवर ओरिजिन. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू कैन जनरेट. एक बना लिया हमने, सपोज ऐसे ये मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ. ठीक है, क्या करना है, यू कैन टेक इन एनी डायरेक्शन. सपोज मैं अभी नेगेटिव डायरेक्शन में एक एक्सिस, ये मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया, एक ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंड दिस वन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. सॉरी, इट विल बी हियर. Okay, and it can be in negative direction, again so you can generate your own frame of reference. हम इसे vertical direction में भी ले सकते थे, ये given है. ठीक है, मैं यहाँ पर भी ले सकती हूँ कि मेरा frame of reference जो है वो y direction में move कर रहा है, लेकिन velocity constant होनी चाहिए. इस वाले frame of reference में acceleration नहीं चाहिए, velocity should be constant. तो आप ये वाला और ये वाला डायग्राम बनाते हो, इस करेक्ट. आप ये वाले दो डायग्राम बनाते हो, ये करेक्ट. आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हो, वो भी करेक्ट. ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अकॉर्डिंगली यू कैन मूव द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है, बुक्स में हमें मोस्टली इस टाइप का मिलता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमें ऐसे वाई एक्सिस में भी लेना पड़ता है. Your theory of relativity that is related to this frame of reference. And now we
come to our non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. पिछले वाले से सब रिवर्स होगा। यहाँ पे पिछले वाले क्या था, हम बोलते थे लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं मैम, इसमें लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करेंगे, मतलब ये क्या हुआ, लॉज ऑफ मोशन ब्रेक कर रहे हैं, माने हम तो यूनिवर्सल लेके चलते हैं ना उन्हें, ग्रेविटेशनल लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, ये सारे। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें होल्ड क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी, F इक्वल्स टू ma, मतलब फोर्स होना चाहिए वहां पर, फोर्स हमें दिखना चाहिए, बॉडी की स्टेट चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें फोर्स दिखाई नहीं देने वाला, लेकिन कुछ तो होने वाला है। हमने कार का एग्जाम्पल लिया था, चलो हमने बोला था सपोज वी आर ट्रेवलिंग इन ए कार, ठीक है, suddenly the brakes are applied, we fall in the forward direction. Why do we fall in the forward direction? You are sitting in the car, you are not observing that it is accelerating because you are sitting in the car itself. आप उसी frame of reference में ही हो बेटा, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक लगी तो हम आगे की तरफ गिरे, आगे की तरफ गिरे तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, भाई तुम पे किसी ने तो फोर्स लगाई होगी तभी तुम आगे गिरे, ठीक है। अब हमें तो कोई दिख नहीं रहा, मुझे किसने धक्का मारा, किसने मुझे पुश किया मेरी सीट से, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब दैट। तो ये इस टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा, दैट इज अवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने एग्जांपल लिया था कि हम इमेजिका गए थे, ठीक है, लेट अस सपोज दैट, और फिर हम एक मैरी गो राउंड में बैठे थे, और हमने कहा मैरी गो राउंड में जैसे जैसे हम ऊपर गए थे तो हमें ऐसे लग रहा था कोई हमें हमारी सीट पर धक्का दे रहा है, खींचने, फंस गए हैं हम सीट पर, है ना, somebody is pushing us towards the seat, ठीक है। तो वो जो पुशिंग वाला एफर्ट है वो ठीक है कि हमें सर मैरी गो राउंड का सबको पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग ओवर ए सर्कुलर पाथ, लेकिन वो तो मैरी गो राउंड, फ्रॉम वेयर द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन योर, पर कौन पुश कर रहा है, और ऐसे नीचे की तरफ आता है तो हमें थोड़ा आगे की तरफ गिरने लगते हैं हम, तो वो कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो है, आपने उसे एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, कार का केस हो या कि फिर मैरी गो राउंड का केस हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट फोर्स, बट हु इज अप्लाइंग दैट फोर्स, दैट ओरिजिन इज नॉट क्लियर टू यू, and when such cases arises, it means now you are in the non inertial frame of reference, ठीक है। in non inertial frame of reference laws of motion will not hold, okay, why, because the source of force, origin of force is not visible, okay, and why these forces are coming, because your frame of reference is either accelerating or it is deaccelerating, means it possess acceleration। एक्सीलरेशन कब आएगा, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो हम वेलोसिटी के साथ एक अपवर्ड डाउनवर्ड एरो लगाते हैं कि भाई वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, या कि फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। एक हमने कहा था कि जब हम सर्कल पे टर्न लेते हैं, गोल चक्कर पे टर्न लेते हैं, तो भी हम आउटवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा धकेल देते हैं। हम तो कार में बैठे थे, किसने धक्का मारा कि आप अपनी सीट से लेफ्ट की तरफ मूव कर गए, force is there because the motion is there, you are experiencing that force, effect is there but the force is not visible। इन सब केसेस में क्या हो रहा है, जब आप सर्कुलर टर्न ले रहे हो, बेशक गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रखी थी, फिर भी आपने फोर्स एक्सपीरियंस की, क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जब आपने टर्न लिया तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ से सर्कुलर टर्न लिया तो ये सर्कुलर पाथ पे ये टेंजेंट ड्रॉन से वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है, देखो दोनों बार वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है, पहले में मैं v1 लिखती हूँ, सेकंड केस में मैं लिखती हूँ कि ये मेरी वेलोसिटी v2 है, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हुई तो वी नो द सिस्टम पोजेस एक्सीलरेशन। तो आपकी कार एक्सीलरेट हुई थी जब आपने सर्कुलर पाथ पे टर्न लिया था। सेम इज द केस फॉर मैरी गो राउंड, जब आप यहाँ पर थे आपके पास फोर्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, when you reach to another point in the downward direction your direction of motion is changed, it means system possess acceleration, and if you were traveling in the car and you apply brake, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कार की बढ़ेगी या कम होगी, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है भाई, स्पीड कम हो जाती है या बढ़ जाती है, कम होती है, कम हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स,
कम हो जाती है ना, क्योंकि हमें रोकना है उसे, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं सिस्टम इज नाउ डी एसिलरेटिंग, एसिलरेशन इज नेगेटिव, देन इट मीन्स सिस्टम इज नाउ डी एसिलरेटिंग। सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is under acceleration or deceleration, they are known as inertial frame of reference. They are known as inertial और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर पेपर में हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? पहला ही पॉइंट है, एक्सक्यूज जल्दी मी से तुम मैम। पढ़ो। हाँ, someone is waiting in the lobby, let me take the हाँ मैम। person in. Okay, let us take one this download 10 minutes. Okay, let us come back to this non inertial frame of reference. पहला पॉइंट, लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। दूसरा पॉइंट, ओरिजिन ऑफ फोर्स इज नॉट क्लियर। और ओरिजिन ऑफ फोर्स नॉट क्लियर है तो हमें पता नहीं है, तो उस फोर्स को हमने कल नाम दिया था सूडो फोर्स, सूडो फोर्स नाम दिया था या इमेजिनरी फोर्स नाम दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? These frame of references are mostly under acceleration और deceleration। और acceleration deceleration कब होगा? Either the speed is changing, speed is increasing, speed is decreasing, और body is moving over a curved path, body is moving over a curved path। देखो ये तीनों केसेस मैंने लिख दिया, स्पीड अप हो सकता है, स्पीड डाउन हो सकता है, यहाँ के फिर अपन कर्व्ड पाथ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अभी तुम अपनी नोटबुक ओपन करो, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। दोनों तरफ 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने मिनट लगेंगे? 3। चलो 3 मिनट्स हैं, लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जल्दी से देख लो स्लाइड, मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से स्क्रीन से, नहीं तो तुम चीटिंग करके लिखने वाले हो। Okay, now I'm shifting to the next, so that you can't copy. 3 minutes you have. Three minutes, 8:55 it is. 8:58, hopefully it will be completed. यार ये माउस दिक्कत करता है कभी कभी। ये भले देखो, ये माउस अभी कहाँ पर है, देखो। माउस कल भी ने ऐसे ही कर रहा था, देखो। इट विल नॉट मूव नाउ, इट गेट जैम।
इसको फॉर्मेट मारूंगी, किसी दिन तभी होगा ये सर। ये मैं बोल रही हूँ ना कि ये बहुत बार ऐसे करता है, कल भी ऐसे कर रहा था ये बीच में। उसमें ही चलेगा तो इसका चलता होगा, ये दबा अच्छा मैं ये चल रहा है, ये यूज़ करो। ठीक है, माउस अगर माउस को यूज़ करना है तो भी इसको यूज़ करो ऐसे। बंद मत करना, मैं प्रेजेंट बता कर रहा रही हूँ। भी। हाँ ठीक है, लेकिन ये पहले दोनों चलते हैं जब मैं काम करती हूँ, SY केस में चलते दोनों आराम से। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। नो मैम। लास्ट मिनट, लास्ट 1 मिनट। Completed now? Yes, it's 58 now. Yes, 58. दो दो लोगों को चूज करते, कंप्लीटेड हो गया ना कंप्लीट। हाँ मैम। हाँ चलो ठीक है, दो 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 लोगों को चूज करते हैं, एक गर्ल्स की तरफ से एक बॉयज की तरफ से, ठीक है। प्रीति सूर्यवंशी, ओके, एवरी टाइम शी कम्स लेट। चलो आज थोड़ा डांट लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, इधर से गर्ल्स की तरफ से कोमल, हैव यू डन बेटा? कोमल, Komal, shall we work? Are you ready to give the details? चलो अभी ऐसे तो ठीक है, एब्सेंट मार्क करने वाले। दोज हु आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन ना, दे आर गोइंग टू गेट 0 अटेंडेंस टुडे। गर्ल्स की तरफ से, बॉयज की तरफ से किसको ले? बॉयज में से कौन हेल्प करने वाला है भाई? मैम बॉयज की तरफ इनर्शियल फ्रेम है अमित, ठीक है। और गर्ल्स की तरफ से गर्ल्स अपूर्वा, तंजिला, पायल, मैम कैन वी एनीबॉडी? हाँ यस यस, चलेगा चलेगा। ओके बॉयज, Amit, you said for you it is the inertial frame of reference. You tell me the one point of inertial frame of reference, and then Tanjila, no, Rutuja will tell me the that corresponding point in the non inertial frame of reference. मैम Okay, मैंने Amit start. मैम मैंने जो लिखा है वो बताती हूँ मैं। हाँ हाँ तो रुक तो सही, एक एक पॉइंट लेंगे ना, एक इधर से एक इधर से, टेंशन ना ले, मैं हूँ, ठीक है। चलो अमित, चलो अनम्यूट कर लो भाई दोनों, और अमित फर्स्ट पॉइंट बोलो बेटा। It moves with a constant velocity. In inertial frame of reference, ओके moves with a constant velocity. रुको रुको, इन इनर्ज रुको 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 रुको, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। थोड़ा सा रिफाइन करती हूँ, एवरीबॉडी प्लीज लिसन, ठीक है। एनी फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to first frame Ma'am, of your voice is reference shaky. is also our inertial frame of reference. मैम आपने जो This बोला is ना कुछ how we शब्द है generate बहुत our, आवाज कट रही है आपकी, सही में। हाँ मेरी मैम। मेरी हाँ अभी भी स्टूडेंट, बहुत बाकी कट को भी ऐसा लग रहा आवाज ही है, नहीं आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा तो मैं बाकी लोगों से भी पूछूं, संजय, अपूर्वा, वॉइस ब्रेक आई एम नॉट ऑडिबल? मैम आवाज ब्रेक हो रही है। मैम बहुत आवाज ब्रेक हो रही है आवाज मैम। ब्रेक हो रही है, वेट। The body is at rest or moving at a constant शायद पिंग आया होगा। velocity.
analytical terms as a word that describes मुझे time तो आ रही है सबकी अच्छे से। and in a time independent manner. अरे अमित Here, रुको। थाम जरा। अमित ने पूरी कहानी पढ़ दी। भाई अमित एक एक पॉइंट कहा था मैंने बोलने को। भाई रुको जरा। पूरी पूरी कहानी नहीं पढ़नी, एक एक पॉइंट बताना है, तभी तो मेरे को याद करवाना है ये क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में आता है ना ये। अच्छा हाँ सॉरी एक एक पॉइंट होएगा तो फिर मेरे बाकी बच्चों को भी याद हो जाएगा ना। अपन को वैसे लेके चलना है। चलो अमित ने फर्स्ट पॉइंट दिया है कि एनी फ्रेम विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलो भाई इधर से गर्ल्स की तरफ से फर्स्ट पॉइंट। मैम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अंडर द एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। शाबाश। अमित का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ऋतुजा का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन से चल रहा है। ठीक है, चलो अमित सेकंड पॉइंट। अमित Ma'am, inertial frame of reference does not depend on acceleration or deceleration of the body. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है तुमने इसमें? और मैम इसमें क्या वैलिड होता है? भाई देखो मोशन की बात और न्यूटन अंकल को नहीं बुलाओ तो वो नाराज हो जाएंगे। याद आया एक और पॉइंट कौन सा हमें ऐड करना है? हाँ मैम लॉज ऑफ मोशन होल्ड करता है। हाँ शाबाश, लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। frame of reference holds laws of motion. हाँ, in this frame of reference laws of motion hold। शाबाश ऋतुजा। मैम कहना है In non-inertial frame of reference, Newton's first law does not holds good. हाँ वेरी गुड। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉज ऑफ मोशन डजंट होल्ड गुड। ठीक है शाबाश। पायल मैं ना अभी एक क्वेश्चन इन्हीं से कंप्लीट करवाती हूँ, फिर एक और पढ़ा के फिर मैं तेरे पास वापस आती हूँ। ठीक है, चलो अमित थर्ड पॉइंट बोलो जल्दी से। Inertial frame of reference depend on origin of force. हाँ, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन ऑफ फोर्स इज नोन टू अस। तुम्हें पता है फोर्स कहाँ से आ रही है, ओरिजिन ऑफ फोर्स इज नोन टू अस। शाबाश वेरी गुड अमित। ऋतुजा In non-inertial अनम्यूट ही कर दे ऋतुजा। frame of reference, force is not visible. यस, ओरिजिन ऑफ फोर्स इज नॉट नोन टू अस। नॉन इनर्शियल में जहां पर एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन था, ओरिजिन ऑफ फोर्स इज नॉट नोन टू अस। कैन यू नेम द फोर्स विच इज एक्टिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Pseudo force. सूडो फोर्स। ठीक है, पी साइलेंट है। सूडो फोर्स कह सकते हो, इमेजिनरी फोर्स कह सकते हो, नॉन रियल फोर्स कह सकते हो। ठीक है जी, शाबाश। एनी अदर पॉइंट लेफ्ट अमित? तो मैम इतने ही लिखे हैं मैंने। इतना ही लिखे, शाबाश। ऋतुजा तेरा कोई पॉइंट लेफ्ट हुआ है? नहीं ना? नहीं, मैंने वही लिखा था. It is a real force and non-inertial is pseudo force. हाँ, दिस वन इज अवर नॉन रियल फोर्स। ठीक है, और हमारे पास अमित के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अमित के पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। ऋतुजा के पास नॉन इनर्शियल फ्रेम था जहां पर एक्सीलरेशन था, डीएक्सीलरेशन था। कब आता है एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन? किससे पूछें? अपूर्वा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अपूर्वा ये बता Yes, ma'am. मुझे कि सूडो फोर्स का कोई एग्जांपल याद है? मैम अमित का आपकी आगे आवाज गए, इमेज पे आवाज गए। नहीं आ रही। मैम मैम सच बताओ तो आपने क्या टास्क किया था रुपया बराबर? लेकिन मेरे इधर से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है यार।
ठीक है, मैं फिर रुक मैम जाओ, अभी भी कट रही है, करती कुछ हूँ। सुना ही नहीं दे रहा। क्या बोल- Just wait for 1 minute. वो था ना मेरा माइक, ईयरफोन रखा था ना इधर, पसली लेके गई। ये वाली बात में करके देते हैं। बाद में कर दो, तुम मार दो मेरे सिग्नेचर उस पे। मेरे को नहीं, तुम भी लास्ट मोमेंट पे जब मैं, तो मुझे पता नहीं ये ऐसे चलते हैं उस बैंक में कि नहीं, मुझे पता नहीं उसमें ये है कि बैंक में दूसरे। जस्ट वेट, हाँ मैं अटैच करती हूँ इसके साथ माइक्रोफोन और फिर देखते हैं। हाँ भाई, अभी स्टूडेंट्स यस अभी आ रही है क्या? आ रही मैम, ठीक है। हाँ यस अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है, आ रही है। हाँ ठीक है, हमने कल वाला ही रिवाइज किया था ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, और मेरे को मेरे स्टूडेंट ने याद भी कराया। ठीक है जी, और अभी हम आगे चलते एग्जाम्पल ऑफ सूडो फोर्स करते हैं। ठीक है, सूडो फोर्स के एग्जाम्पल वही जो भी हमने पढ़ी थी, वही फोर्स मैंने यहाँ पर फिर से क्या मेंशन की है। ठीक है जी, लिखने का थोड़ा सा तरीका अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो पहली, हेलो स्टूडेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ, प्लीज म्यूट। Okay, now there are two forces that we want to discuss. They have a particular name. First is our centrifugal force. Okay, the centrifugal force is basically the reaction of centripetal force. When a body is moving over a circular path, obviously to move it over a circular path, we need a force. And this, but in this particular case, when you are moving over a circular path, that particular force required is called centripetal force. Okay, and because to every action there is a reaction, this is Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction, so there must be a centrifugal force also. Okay, so now the force which was pushing the body on the merry-go-round, the force which was pushing the person in the seat of the car while car was taking the circular turn, that force was centrifugal force. Okay, so I'm just going to read this once more. When a bus suddenly turns right, the person inside the bus feels as is pushed towards left. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर राइट में है तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल क्या होगी, लेफ्ट में होगी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड दिस इज नॉट रियल फोर्स, एज द नेम से इट इज सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स. Okay, so the person, because the bus is moving over the circular path, it will experience centripetal force. If the force is there, there will be in acceleration, so there will be centripetal acceleration. So what we have now, अभी बोला था ना ऋतु जाने की मैम, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन होता है देन इट बिकम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Okay, the acceleration on the man in the bus is opposite to the centripetal acceleration, and because the acceleration is, so this one is our centrifugal force and this one is pseudo force. तुमने 11वीं जूनियर कॉलेज में 11th में 12th में बहुत बार पढ़ा होगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो पत्थर को भी गोल गोल घुमाते थे, है ना, और एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करती थी वर्टिकल सर्कल में, वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट, वेलोसिटी एट हायर पॉइंट निकालते थे. अभी पीपीए में ऑलरेडी तुम पढ़े हो that electrons are moving over the circular paths. These paths are called orbit. Again they need centripetal force. ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर उनको तुमने रिलेट करके रेडियस का फॉर्मूला निकाला होगा. तो ये जो मेरी जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, ठीक है, तो तुम अगर उसके साथ प्रेजेंट हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस सूडो फोर्स एंड दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस इज द केस ऑफ सर्कुलर मोशन.
ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का केस है, सर्कुलर मोशन। और अगली जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ये तब आएगी जब आपके पास रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन जो है वो मेरा 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, और जो मेरा रोटेशनल मोशन है दैट इज अवर 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो मेरा 3 डायमेंशनल मोशन है, और उसमें भी क्योंकि घूम रही, सर्कुलर आपका रोटेशनल मोशन है, अगेन इट विल बी accelerated motion. So if the body is rotating in the clockwise direction, you are going to experience the force in anti-clockwise direction, and this force will be your Coriolis force. हम सब अर्थ पे है ना, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, तो हम उस फोर्स की वजह से ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज एक्सपीरियंसिंग दिस कोरियोलिस फोर्स। तो अगर सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहना है, और अगर हम 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन की हम बात करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो 2 चीजें अभी तक हमने सूडो फोर्स के 2 एग्जांपल पढ़े हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कर है, और एक फिर 2 से ही ध्यान रहता है ना कि अच्छा 2 में थे तो सेंट्रीफ्यूगल थी, फिर अब 3 में जाएंगे तो हाँ मैम अभी रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहेंगे, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स के बाद ये हमने जो कार वाला एग्जांपल दिया था, याद है, when the person will see that, हाँ एक ये वाला अब कार वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, सडनली वी अप्लाई ब्रेक एंड वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज सूडो फोर्स। वन मोर एग्जांपल और इंटरेस्टिंग से देखो, इसे ध्यान से सुनना। एक कार है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो जैसे अमित ने कहा था कि मैडम मेरी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और ये मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। अब इस कार में हमने एक कॉइन फेंक है हमने, ठीक है, तुमने एक कॉइन फेंक है, तो हमें ऐसे जब कार में बैठे तो हमें लगेगा ये कॉइन कैसे जा रहा है, स्ट्रेट में जा रहा है, ठीक, लेकिन एक दूसरा पर्सन उसे ऑब्जर्व करेगा, 2 ऑब्जर्वर लेंगे अब हम, ठीक है, एक कार वाला और एक लिफ्ट में है। लिफ्ट कैसी लिफ्ट है, अपने बिल्डिंग में जो लगी है वो वाली लिफ्ट नहीं लेनी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। एक ऐसा लिफ्ट लेते हैं जो लिफ्ट टूट गई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ठीक है। अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लिफ्ट में थे और लिफ्ट ने सडनली कंट्रोल खो दिया, ब्रेक्स उसके फेल हुए, कंट्रोल सिस्टम इज फेल्ड, नाउ इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जीबी तो क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, ठीक है, तो ये जीबी क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो पर्सन है, जो मेरा पर्सन एलिवेटर में है, वो एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक्सीलरेट हो रहा है, अब वो इस एक्सीलरेशन से उस कॉइन को देखते हैं, कॉइन के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है उसका, ठीक है, और ये सूडो फोर्स भी क्या आ रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो सूडो फोर्स किधर होएगा उसके ऊपर, अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो पर्सन है फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में, उसको लगेगा कि कॉइन गिरा ही नहीं है, कॉइन रुका हुआ दिखेगा उसे, है ना, अलग से एकदम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कार में से पर्सन ने फेंका तो उसे दिखा, हाँ भाई ये देखो ये ऐसे कॉइन जा रहा है। यहाँ ट्रेन में थे, अब ट्रेन में ऐसे बॉल को आपने उछाला खिड़की में से और आपने उसे कैच कर लिया, करते हैं अपन, हो जाता है ये कैच, ठीक है। ये तब का है जब ट्रेन मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, प्लेटफॉर्म आने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर हम उसे फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर से देखेंगे, ठीक है, फ्रीली या पैराशूट से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तब देखेंगे, तब हमें वो कॉइन वहां पे दिखाई देगा, ऐसे ही जैसे कि वो हवा में अटक गया है, ठीक है। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ कोरियोलिस फोर्स विच इज एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो आपके पास पेपर में अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फोर्स, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख सकते हो, कोरियोलिस फोर्स लिख सकते हो 2, तीसरा वो कार वाला एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, चौथा ये वाला एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। इसमें कोई वो नहीं रहता कि आपको ये जो बुक में दिए वही वाले लेने हैं, ठीक है, आप उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शंस, कि ये फोर्स किधर एक्ट कर रही थी, ये किधर एक्ट कर रही थी, ये पुश कर रही है तो ये बॉडी के टूवर्ड्स द बॉडी एक्ट कर रही है, और लेकिन इसका एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट कर रही है, ये
along the radius outward direction में एक्ट कर रही है। तो ये चीजें आपको उसमें सही से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। जो भी दो फोर्सेस आसान लगे आपको सूडो फोर्सेस में, यू कैन टेक दोज 2 एग्जाम्पल, बस 2 से ज्यादा लिखना नहीं है वहां पर, ठीक है। 2 ही एग्जाम्पल हमें सूडो फोर्स के क्या करने हैं, अच्छे से लर्न करके रखने हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है व्हाट आर द 4 डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ग्रेविटेशनल। स्टूडेंट गिव मी 1 मिनट, आई डोंट क्लोज कर, ठीक है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ी, स्ट्रॉन्ग फोर्स की और वीक फोर्स की, और मैम ने बोला कि इनमें से हमारे पास एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है 4 मार्क्स में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हाँ स्टूडेंट्स, अनम्यूट कर दिया। अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है ना, वो 2 मार्क के जो पहला जो क्वेश्चन 1 आता है ना, उसमें वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें वो आपको सिंपली पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर वो 2 मार्क का है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करने हैं, 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया, एक फोर्सेस का हो गया। और थर्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी कभी वो 2 मार्क में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फोर्स, गिव 2 एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फोर्स, गिव 2 एग्जांपल। तो व्हाट इज सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कम्स इनटू पिक्चर whenever the frame of reference is accelerating or deaccelerating, एक्सीलरेटिंग और डीएक्सीलरेटिंग, ठीक है। और सेकंड, इसमें 2 एग्जांपल, आप 2 तो क्या, हमने तो 3-4 लिखे हैं, तो आपको जो 2 याद रहे आप वो 2 एग्जांपल लिख दो। लेकिन अगर उसने 4 मार्क्स में पूछा, वैसे ये क्वेश्चन कभी भी 4 मार्क में नहीं आया है सूडो फोर्स का, ठीक है। मान लो इस बार हमारा बैड लक है, पूछ भी लिया, तो अपने को सूडो फोर्स की डेफिनेशन और उसके कोई 2 एग्जाम्पल अपने को लिखने आने चाहिए, ठीक है। कोई 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख दो, या के फिर, और क्योंकि वो आसान है याद रखना, 2 डायमेंशन में सेंट्रीफ्यूगल है, 3 डायमेंशन में कोरियोलिस है, तो वो थोड़ा सा लर्निंग में आसान हो जाता है। और अगर वो ना याद रहे, आपको मैडम का लेक्चर याद था, तो आप लेक्चर में से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और एक दूसरी प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी तो कवर करना है ना। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। And now I will take, just give me 1 minute. Okay, meanwhile I will share my PPT. No, ma'am. Can you? Not visible, ma'am. हाँ, सबके पास आने में 2 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा इट टेक्स सम टाइम टू गेट अपलोडेड। चलो मैम आ गए हैं तुम्हारे पास वापस। वाह, तुमने अटेंडेंस टाइप भी कर दी, अरे वाह यार, तुम तो बड़े अच्छे हो। सुमेश इज देयर, सुमेश देर में है ना तुम, सुमेश को डांट पड़ेगी, सुमेश लेट ज्वाइन किया आज हमें। मैम टाइम पे उठा करो, मैं मैं उठा एक दिया करूंगी एग्जांपल नीचे के सुबह थ्रू सुबह। थोड़ा समझाऊं। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू जरूर, मेरे को अच्छा लगेगा। मैम अगर देखो समझो, अगर हम लोग एक बस में जा रहे हैं, हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी बेटा, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ बस में जा हेलो, रहे हैं और यस आई एम लिसनिंग। मैम अगर 2 पर्सन बैठे हैं बस में, तो वो 2 पर्सन को वो 2 पर्सन रेस्ट में है, हाँ सही, लेकिन अगर हम उन्हें एक वो दूसरे से कंपेयर करें ना। हाँ एक दूसरे के कंपेयर करें तो रेस्ट में है, लेकिन अगर हम लोग अनदर पर्सन, हाँ शाबाश, बाहर के किसी अनदर पर्सन को देखेंगे, तो हम मोशन, हमको लगेगा कि हम मोशन हाँ में है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन वो मूव कर रहा है। थर्ड पर्सन मूव कर रहे हैं कि अपन मूव कर रहे हैं? मतलब हमको थर्ड पर्सन कर रहा है, हम तो रेस्ट में है, लेकिन उस पर्सन के रिस्पेक्ट में हम मोशन में है ऐसा।
मोशन में। शाबाश, वेरी गुड अमित। और किसी को कुछ ऐड करना है? और किसी को ऐड करना है भाई कुछ? गर्ल्स तुम नहीं आती भाई, पार्टिसिपेट नहीं करते तुम। प्रतीक शर्मा इज देयर टुडे विद अस। मेरी क्लास में 2 प्रतीक है ना, मैम एक वो प्रतीक क्या जी है, एक प्रतीक आवाज एस। नहीं आ रहा था उसका, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं आ रहा आवाज, बहुत तक अटक अभी भी रहा। नहीं आ रहा? आप जो क्वेश्चन उस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी यार तो ऐसे कर, अभी बाकी लोगों को आ रही है, अभी तो बाहर आ, रूम में मत बैठ, तो अपने घर की गैलरी में आ या छत पे आ। नहीं तेरे मैम, पास कमरे में सिग्नल वीक प्रॉब्लम आ है। रहा है। मैम वॉइस इज ब्रेकिंग, मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। लेकिन वॉइस इज ब्रेकिंग मेरे, अच्छा ठीक है, मैं आई विल चेक इन द रिकॉर्डिंग आल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ इट इज शोइंग फुल। मैम अभी स्लाइड भी नहीं दिख रहा है आपका। हाँ अभी मैंने स्लाइड अभी तुम्हें शो नहीं की, मैं तुम्हारी स्क्रीन पे ही हूँ क्योंकि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही थी। तो अमित ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है रेस्ट एंड मोशन, तो मैं अभी तुम्हें स्लाइड दिखेगी। मैम बहुत ही ब्रेक हो रहा है नाउ इसका। द स्लाइड इज देयर। हाँ मैम, रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम। ओके, नाउ द स्लाइड इज विजिबल। नहीं मैम। सुमेश तुम तक चुप रहो, तुम देर में आए हो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज हूँ। एवरी टाइम यूर सेइंग रिपीट, और खुद तुम आते नहीं हो टाइम पे। आज मैडम नाराज है तुमसे, आप कभी टाइम पे नहीं आते हो, जल्दी भाग जाते हो, सोए रहते हो। नहीं नहीं ठीक है, देखो मैं सिर्फ ये बताने वाली थी दैट रेस्ट, व्हेन वी से रेस्ट एंड मोशन इट इज शोइंग सिग्नल 100। okay, when we say rest and motion, as the Amit explained, I will just add one term and everything will be clear. When we say we are traveling in a bus as compared to co-passengers, we are at rest because we are making one inertial frame of reference. Okay, and anyone who is on the road, he says that bus is moving, we are in the bus, so we are also in the motion. So that is our another frame of reference. So when we say rest and motion, the body, this particular body is in rest or this particular body is in motion, it depends what is our frame of reference. With the change in frame of reference, the state will change. Maybe the body which is at rest, it appears in motion by changing the frame of reference. Like we are now sitting at our homes. So if you compare yourself with any outsider on the road who is moving, we are at rest because they are moving, they are changing their position, but we are still at the same position. So according to that person traveling on the road, vehicles on the road, that frame of reference, we are at rest. But if the frame of reference is changed for a person, say now another one is observing us from the moon, because earth is revolving around the sun, earth is spinning about its axis, and we are on the earth. So together with the earth we are also in the motion as appear to the observer on the moon. So the frame of reference is now changed. Whenever the frame of reference will change, you have to carefully observe the situation, whether the person appears, now the person will be in the state of rest or it will be in the state of motion. So state of rest or the state of motion, they are relative terms. Relative means you have to relate. किसके विद रिस्पेक्ट टू तुम बात कर रहे हो? अगर तुमने कहा तुम स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, किसके विद रिस्पेक्ट टू? मम्मी तो आ रही जा रही है कभी रूम में, डैडी ऑफिस गए हैं, आप बहुत सारे लोग बाइक आपके घर के बाहर गाड़ी से जा भी रहे हैं, ठीक है? तो आपने बोला एज कंपेयर टू द माई अदर फ्रेंड्स हु आर वेटिंग फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, वो तो मैम बाहर घूम रहे हैं आराम से बाइक पे, उनके कंपेरेटिवली मैं रेस्ट पे हूँ। अच्छा, फिर मोशन में कब हो? हाँ मैडम आप और मैं मोशन में हैं, जब हमने मून से ऑब्जर्व कर लिया तो हम मोशन में हैं।
ये मम्मी से कंपेयर कर लो जो बेचारी अभी काम करी है ना, मोशन में है मम्मी, और हम सब किस में हैं, रेस्ट में हैं। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, वी कैन नॉट से दे आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, माने वो होता है ना, आइडियल थिंग डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज और द एक्सटर्नल factors will be there that will affect it, so we can't say it is absolute. So rest and motion are relative terms. Is the slide visible now? Yes ma'am, yes. Yes, Slide is visible. Slide is visible, you just go through the slide. Everybody please go through the slide. Is it same what I was explaining or something else is there? If there is another term, you please tell, first read and then tell. Gone through? देख ली? अरे चले ही जाते, अरे चले गए क्या बच्चों? नहीं मैम। नो मैम। हाँ मैम, पढ़ लिया स्लाइड। पढ़ ली ना? हाँ हाँ पढ़ ली स्लाइड, ठीक है ठीक है, मैं वापिस आती हूँ स्लाइड पे। स्लाइड की समरी क्या है? व्हाट इज द समरी ऑफ द स्लाइड? पायल, स्लाइड को अगर समराइज करना है तो स्लाइड में क्या क्या बताया गया? जस्ट स्लाइड में बस इतना बताया मैम कि इफ समवन इज लाइंग ऑन अ बेड, दैट मीन्स द पर्सन इज रेस्टिंग एंड इट इज ऑन रेस्ट, नॉट इन अ मोशन। और क्या बताया है स्लाइड में? मतलब स्लाइड, इस स्लाइड में हमने रेस्ट को डिफाइन करा है एक तरह से किया है कि बॉडी रेस्ट पे हम तब कहेंगे जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन लोकेशन बदल नहीं रही विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, है ना? एक नई टर्म भी आई है ना, ये सराउंडिंग्स, Yes, ma'am. है ना? शाबाश। हाँ जी आदेश, तुम बताओगे क्या? और क्या डिफाइन, और क्या है इस स्लाइड में? एक तो रेस्ट को डिफाइन किया और एक नई टर्म सराउंडिंग आई है, और क्या डिफाइन किया आदेश इस स्लाइड में? पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन क्या? पोजीशन तो हमें पता ही होगी ना, यहाँ पर है। और लास्ट में देखना, कुछ लास्ट में लिखे है क्या? पिंक से कलर में कुछ है क्या? मोशन इज डिफाइंड है क्या? मोशन। रुक आदेश से पूछा। मोशन भी डिफाइन किया। मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। इट इज द चेंज इन, देखो तीन चीजें जो हमें ना स्लाइड पे तो लिखा बहुत कुछ है मैडम ने, लेकिन तुमसे जो तुम्हें उसको समराइज करना आना चाहिए ना। क्या पूछा है मैम ने? अरे पेन भाई, आ जा पेन। तो स्लाइड को सब अपने को पता होना चाहिए क्या उठाना है स्लाइड से। हर चीज थोड़ी ना उठाएंगे, फिर तो बहुत सारा लर्न करते करते मर जाएंगे। इतना नहीं पढ़ना बाबा, फर्स्ट ईयर है, मैम है तुम्हारे पास। एक तो ये डिफाइन हुई है हमारे पास टर्म व्हाट इज रेस्ट। फिर नीचे देखो यहाँ पर एक टर्म मोशन, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, सराउंडिंग के साथ बदल रही है, तो एक टर्म नई आ गई है सराउंडिंग। वही सराउंडिंग जिसे तुम क्या कह रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्या है, मेरी सराउंडिंग है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ रेस्ट मोशन पढ़ा, सराउंडिंग को हमने कहा ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी जल्दी से एक ये स्लाइड गो थ्रू करो एंड देन वी विल लीव द मीटिंग। देखो इसमें हमने कहा व्हेन अ ट्रेन इज इन मोशन इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। ओके, now consider a person sitting in the train. For someone standing on the platform, the person sitting in the train is in motion. जो प्लेटफॉर्म पर है, जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे है, अरे पेन तो छोड़ दिया मैंने, सॉरी। वन हु इज ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपके फ्रेंड आपको ड्रॉप करने गया तो उसे लगेगा हाँ भाई गाड़ी चल पड़ी है और तुम भी गाड़ी के साथ मोशन में आ गए। ठीक है, सारे के सारे मेरे टैब के ऊपर आ गया पेन वगैरह। फॉर द को पैसेंजर्स, अगर हम को पैसेंजर्स की बात करें तो फिर जैसे हमने बस की बात की थी, अगर मैं को पैसेंजर से ट्रेवल करूं
तो वो भी वहीं बैठा है, मैं भी वहीं बैठी हूँ, जब तक पुणे नहीं आएगा हम उतरेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू, को पैसेंजर्स के विद रिस्पेक्ट टू आप कहाँ पर हो टाइम के साथ। ठीक है, सराउंडिंग कौन है, को पैसेंजर, तो हम किस में, रेस्ट में। तो वही जो टर्म हमने देखो डिफाइन की थी, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द सराउंडिंग, अदर नेम फॉर द सराउंडिंग इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक पॉइंट मुझे क्लियर करना था। क्लियर है? जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माय लविंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहीं पे रोकते हैं, अगली बार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसके क्वेश्चन, एक एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चंस बना के रखूंगी। आई विल आस्क दोज क्वेश्चंस, सो प्लीज गो थ्रू द बुक्स दैट यू हैव। इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो जूनियर कॉलेज की जो बुक है ना उसमें से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। अभी अपन सिर्फ